Hello, students. Welcome you all to our first session of our chapter number 6, that is tissues. Yes, students, today we are going to start with our new chapter of biology section, that is tissues. In our previous chapter, we have of the biology section, we have done chapter number 5, that is the fundamental unit of life, which is cell. Now we are going to do tissues. Okay. Students, let us understand the meaning of tissue. Actually, students, multicellular organisms are made of millions of cells. Okay, students, we know that organisms are either unicellular or multicellular. And multicellular organisms means it is made up of many cells, millions of cells. Okay, cells shows division of labor and each cell performs a particular function efficiently. Such cells are grouped together and is called tissue. So actually, what is the exact definition of tissue? Tissue is nothing else, it is a group of cells. Okay, it is a group of cells which are similar in structure and origin and they perform similar function. ओके ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और वो एक जैसा काम करते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज. Okay, if you see the order histology of tissues, okay, so you can see that the fundamental unit of life is cell. Okay, you can see this diagram. Now group of cells combine to form tissues. Okay, similarly group of tissues combine to form organs and a group of organs combine to form organ system, and such different organ systems combine to form a whole living body. Understood? So once again students, group of cells combine to form what? Tissues. Group of tissues combine to form organs. Group of organs combine to form organ system, and such various organ systems combine to form a whole body, living body, as you can see the figure of a human body. Okay, so once again, what do you mean by tissue? It is the group of cells that are similar in structure and perform similar functions. There are various types of tissues in multicellular organisms which we are going to study in detail. Okay, प्लांट्स के टिश्यू अलग पढ़ेंगे, एनिमल्स के टिश्यूज अलग पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. Before starting with each and topic of plant tissue or animal tissue, first let us discuss that are plants and animals made of same types of tissues? The answer is no. Plants and animals are made up of different types of tissues. And why do they require different types of tissues? What is the reason? Both are living beings, but why do they need different types of tissues? The reason here it is given in the difference. Okay, the first point is, since animals are mobile. Students, here mobile doesn't means our handset, हमारा ये phone वाला mobile नहीं. Mobile means they can move. Since animals are mobile means they can move, so they require more energy. Since animals can move, they require more energy and hence more living tissues are required. Okay, living cells and those living cells combine to form living tissues are required. But plants are stationary, they are at one place only, so they do not require much energy, hence more living tissues are not required. Now animals move from one place to another in search of food, shelter, etc. Okay, hence they need more energy and there are more tissues which are living form. But in plants most tissues provide, है ना. एनिमल्स में टिश्यूज़ का काम क्या होता है? मूवमेंट में, शेल्टर फाइंड करने में, इन सब में, फूड के लिए, इन सब के लिए काम आता है. सो मोर लिविंग टिश्यूज़ आर देयर. बट इन प्लांट्स टिश्यूज़ का मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, टू गिव द स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. Most of these tissues are dead, they are mostly dead. It can provide mechanical strength as easily as the living ones. Bhale the tissues are dead, even though the tissues are dead in plants, they can provide mechanical strength to the plant. Okay, तो लिविंग बींग्स भी मैकेनिकल, लिविंग टिश्यू भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और ये डेड टिश्यू भी क्या देता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. नाउ थर्ड पॉइंट, the cell growth is uniformly distributed. In animal tissues the cells are uniformly distributed. Cell growth means what? The growth of the growing of the cell, है ना. इन देयर साइज वो यूनिफॉर्मली साइज में डेवलप होता है हर तरफ से. बट हियर इन प्लांट टिश्यूज द ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स ओनली. एक ही पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोथ होता है. नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स. इन एनिमल टिश्यू में ये जो टिश्यू बन जाते हैं ना, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स,
and the organs combine to form organ system. Okay, and all these organs and organ system are more specialized and complex. इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट प्लांट टिश्यू में ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर है इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर कंपेरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स. सो ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, due to the difference in these differences in the structure and function of plants and animals, they are made up of different types of tissues. इसी के लिए हम इनको कॉमनली नहीं पढ़ सकते, हमको प्लांट टिश्यू अलग पढ़ना होता है, एनिमल टिश्यू अलग पढ़ना होता है, ड्यू टू these differences. Okay students, now students, let us start with the topic of plant tissues. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर द बाइफर्केशन कि प्लांट टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं. पूरा टेबल वाइज ये चार्ट हम पहले पढ़ लेते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक. ओके, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यूज़ का. ये चार्ट में आपको पता पड़ जाएगा कि प्लांट टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स है. फिर हर एक टाइप का हम लोग एक एक शॉर्ट नोट पढ़ेंगे. ओके, सो प्लांट टिश्यू इज़ ब्रीफली डिवाइडेड इनटू, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के दो मेजर टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी तीन टाइप्स होते हैं जो उसके शॉर्ट नोट में आ जाएगा. द थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपको फिगर में नहीं दिख रहा है, दे आर एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी जो उसके शॉर्ट नोट में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द परमानेंट टिश्यू. ओके, द परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ओके, the simple tissue is divided into what? Three types, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, इसके साथ साथ एक और टाइप इसमें आता है क्लोरेंकाइमा. parenchyma, क्लोरेंकाइमा, collenchyma and sclerenchyma. Okay, now complex tissue are further divided into two types, xylem and phloem. xylem and phloem, और xylem और phloem के अलग से शॉर्ट नोट से, वो हम अलग अलग शॉर्ट नोट में उसके और आगे कंपोनेंट्स देख लेंगे. ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. और ये कौन से बेसिस पे दो टाइप्स है? इफ़ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मतलब अगर प्लांट टिश्यू के कोई सेल्स अगर और आगे डिवाइड होते हैं. स्टूडेंट्स, हमने 5th चैप्टर में देखा था सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. ये है ना, एक सेल दो सेल बनता है या फिर चार सेल बन जाते हैं. ओके, तो इफ़ द प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, देन दे आर कॉल्ड, देन दोज टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बट एक बार सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं ना, वो डिवाइड होते होते ना एक ऐसा टाइम आता है कि देर आर सम मैच्योर सेल्स विच आर नाउ इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, जो आगे और डिवाइड नहीं हो सकते. ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट. अब वो परमानेंट हो गए, वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते, दे आर कॉल्ड परमानेंट सेल्स. सो द सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टिल डिवाइडिंग, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक. विच डू नॉट डिवाइड फर्दर, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. ना परमानेंट टिश्यू में दो है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. अगर सारे सेल्स एक ही टाइप के हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल परमानेंट. बट अगर एक टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स है, इफ़ द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिंपल परमानेंट के अंदर पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा भी है, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम. वी विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल अलॉन्ग विद देयर शॉर्ट नोट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So students, our first topic is meristematic tissue. You can see on the screen meristematic tissue. Students, for this meristematic tissue you have to refer the figure 6.2 of your NCERT textbook. अपना चैप्टर नंबर 6 निकालो टेक्स्ट बुक में, उसमें फिगर 6.2 जो है ना, ये फिगर आपको ड्रॉ करने का है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए. ओके, इफ़ यू लुक एट द फिगर ना, तो फिगर में देखो, अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो उसमें तीन टाइप्स आपको दिख रहे हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं. क्या क्या? एक होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम. इन दिस वे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बट बिफोर स्टार्टिंग विच ऑफ दिस थ्री टाइप्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मैंने आपको चार्ट में बताया था. ओके, एक्चुअली द सेल्स हैव द पावर टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, दे कैन स्टिल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. Okay, now what is the function of this meristematic tissue? They increase the length and width of the plants. प्लांट्स की हाइट बढ़ाते हैं और इसका गर्थ मतलब क्या? विड्थ बढ़ाते हैं. ओके, एंड दे आर फाउंड इन द न्यू ग्रोइंग एरियाज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के जो एरियाज बढ़ रहे होते हैं ना साइज में, उस एरियाज में पाए जाते हैं. द न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टम आर सिमिलर टू द मेरिस्टम. मतलब यहाँ पे जो न्यू सेल्स बन रहे हैं ना, वो अपने ओरिजिनल सेल्स के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. दे आर सेम ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिनल सेल्स. ओके, now what are the characteristics of the cells of this meristematic tissue?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? दे आर एक्टिव. एक्टिव मीन्स लिविंग सेल्स have dense cytoplasm. The cell contains thick cytoplasm. What is cytoplasm? The liquid present in the cell is called cytoplasm. Okay. Thin cellulose walls. क्योंकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का सेल वॉल भी होता है, और सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से. तो इसके सेल वॉल जो है पतला है, थिन सेल्यूलोज सेल वॉल. Then permanent nuclei. There is a thick nuclei and lack of vacuoles. Here the vacuoles are absent. Okay. Now as vacuoles provide rigidity to the cell and prevent quick cell division. वैक्यूल्स क्यों नहीं है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? क्योंकि वैक्यूल्स क्या करते हैं? सेल को रिजिड बना देते हैं और आगे सेल डिवीजन नहीं होने देते हैं. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या होते हैं? और आगे डिवाइड होना चाहते हैं, सो इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं. द सेल नीड्स अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल फॉर अ सेल डिवीजन. नाउ लेट अस गो फॉर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम का लोकेशन और फंक्शन. आपको कोई भी टिश्यू होता है ना, उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन आपको स्टडी करने का. शॉर्ट नोट में आता ही है ये. मैं कोई भी टिश्यू एग्जाम में मांगूँ, है ना, तो अगर उसका स्ट्रक्चर मांगता हूँ तो स्ट्रक्चर दोगे, लोकेशन मांगता हूँ तो लोकेशन, और फंक्शन मांगता हूँ तो फंक्शन. और अगर मैं शॉर्ट नोट बोल देता हूँ तो आपको शॉर्ट नोट में देने का क्या? स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन देने का. ओके. तो द फर्स्ट टाइप इज एपिकल मेरिस्टम. अभी इसका स्ट्रक्चर कहाँ है? तो स्ट्रक्चर तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ गया. सेम स्ट्रक्चर विल बी फॉर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल. कैरेक्टरिस्टिक्स में जो स्ट्रक्चर दिया ना वो तीनों में आ जाएगा, सेम ही आएगा. नाउ लोकेशन. एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, दे आर लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द शूट एंड रूट. जो प्लांट्स का शूट मतलब स्टेम, और रूट मतलब आप जानते हो अंडरग्राउंड जो होता है, उनके टिप्स वाले जो रीजन होते हैं ना, स्टेम का एकदम टॉप वाला टिप और रूट्स का एकदम टिप, ये टिप वाले रीजन में पाए जाते हैं. और टिप वाले रीजन में पाते हैं तो क्या करते हैं ये? दे इंक्रीजेस द हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ द प्लांट. प्लांट की हाइट को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं. ये एपिकल मेरिस्टम जहाँ पे लोकेटेड है टिप पे, वहाँ पे अगर डिवाइड होंगे तो उनकी साइज़ क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब हाइट बढ़ेगी. देन कम्स इंटरकैलरी मेरिस्टम. If you can look at the textbook figure, they are present at the base of the leaves. Okay, leaves के जो base है ना, आप देख सकते हो leaves के जो base होते हैं वहाँ पे ये present होते हैं. And they increases the length of the organs like leaves and internodes. ये leaves का length बढ़ाते हैं या internode का length बनाते हैं. Okay, then comes lateral meristem. Lateral meristems are found on where? On the sides of the stem. Stem के sides में पाया जाता है ये. Okay, और roots है ना. And what is the main thing? The main function of this lateral meristem is they increase the diameter and girth, है ना. मतलब प्लांट को मोटापा देते हैं ये. आप देख सकते हो कि जब न्यू प्लांट होता है तो कितना पतला होता है इसका स्टेम. जैसे जैसे बड़ा पेड़ होता है तो इसका स्टेम मोटा हो जाता है ना. तो ये जो मोटापा जब प्लांट को लेके आते हैं उसका जो डायमीटर बढ़ता है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? लैटरल मेरिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी हैव डन द शॉर्ट नोट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर एग्जाम में खाली शॉर्ट नोट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ये डायग्राम नीचे वाला ड्रॉ करना है आपको. ओके, और साथ साथ में पहले उसका इंट्रोडक्शन देके और तीनों टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करने का. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कम्स परमानेंट टिश्यू. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इन द चार्ट ओनली. परमानेंट टिश्यू कौन होते हैं? इसमें वो सेल्स आते हैं जो आगे और क्या नहीं हो सकते? डिवाइड नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर मेच्योर्ड सेल्स नाउ. बहुत बार डिवाइड हो चुके हैं, अभी आगे और फर्दर डिवाइड नहीं होंगे. दे लॉस द पावर ऑफ डिवाइडिंग फर्दर, सो दोज सेल्स कम, दे आर नाउ डेड सेल्स. ओके, तो ये जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू. दे कैन बी डेड और दे कैन बी लिविंग ऑल्सो. ओके, नाउ टिश्यूज दैट कम्स from meristematic tissue and are matured. They are matured now. They are made of dead cells. They may be dead cells that have lost the power to divide, or they have a definite shape, size and function and may be dead or living. The process by which cells arise from meristematic tissue and take up a permanent shape, size and function. अब ये परमानेंट शेप में आ गए. ओके, आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते तो इनका शेप चेंज नहीं होगा. परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और इनका फंक्शन भी परमानेंट है. ओके, ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे वो अभी आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं और परमानेंट टिश्यूज़ बन गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. The process by which cells arise from meristematic tissue and take up a permanent shape, size and function is called permanent differentiation. Now permanent tissue के types हमने पहले ही देख लिए थे चार्ट में. They can be either simple permanent और complex permanent. सिंपल परमानेंट के हमने 3 टाइप्स देखे थे, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और एक टाइप देखा था वो पैरेनकाइमा में आ जाएगा, क्लोरेनकाइमा करके. उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम एंड फ्लोएम. अब इन हर एक का अपन को क्या करना है? शॉर्ट नोट्स करना है.
Okay, so let us start with this permanent tissues. The first type of permanent tissue is simple permanent tissue. So let us start with simple permanent tissue. Students, here we are starting with the types of simple permanent tissue. Okay, now why they are simple permanent tissue? First of all, because they are made up of what? Same types of cells. ये जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं. परमानेंट तो है, आगे डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन सेम टाइप के सेल्स से बने, सो दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू. नाउ यू कैन सी द पिक. हियर द फॉन्ट साइज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर वेरी स्मॉल. आपको बहुत छोटा लग रहा है. ओके, तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे खाली समझने का है. मैं इस चैप्टर के साथ में जब वीडियोस खत्म हो जाएंगे ना, आई विल सेंड अ PDF फाइल ऑफ द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स का एक PDF फाइल आपको भेजूंगा मैं. आप उसमें से वो चैप्टर को लर्न करना. ये चैप्टर जो है ना, इसको लर्न आप किस में से करोगे? मैं हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा उसमें से. ओके, तो शॉर्ट नोट्स सारे उसमें से लर्न हो जाएंगे. बाकी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट मी रिपीट कि मैं इस चैप्टर का PDF फाइल भेजूंगा रिटन नोट्स का. ओके, वो आपको ओपन करके आपको उसमें से नोट्स लर्न करने इस चैप्टर के. ओके, तो आप ये नहीं सोचना कि स्क्रीन में इतना छोटा छोटा है तो कैसे, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए ये. ओके, नोट्स आप उस PDF फाइल में से पढ़ना. जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आई विल सेंड एट दैट टाइम. ओके, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको फुल चैप्टर रीड करना है और आप रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो. Okay, now once again, now there are three types of simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, तो अभी सबसे पहला parenchyma. Parenchyma के जो cells होते हैं ना, they are mostly living cells. Okay, they are mostly what? Living cells. Okay, now let us discuss about parenchyma. जो मेरे पास notes लिखे हैं ना, उसके हिसाब से आपको मैं explain करता हूँ मैं. Okay, first of all तो पिक में क्या लिखा है? Characteristics क्या है? It is the basic packaging tissue with that fills the space between the other tissues and is found most abundant in plants. ये पैरेनकाइमा का टिश्यू क्या करता है? दो टिश्यूज़ के बीच की जो जगह खाली होती है ना, वो भरने का काम करता है, पैकिंग का काम करता है. दो टिश्यू कोई और होंगे ना, उनके बीच की अगर जगह खाली है, स्पेस खाली है, तो स्पेस को भर देता है. ओके, इसके सेल्स कैसे होते हैं? दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इनके सेल वॉल क्या है? बहुत पतले होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, एंड दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. इनके सेल के बीच का स्पेस क्या होता है? लार्ज होते हैं. एज द सेल्स आर लूजली पैक्ड. नाउ सेल्स हैव न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल्स. सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और बड़े बड़े वैक्यूल्स भी है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू? फंक्शन इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेनकाइमा टिश्यू सपोर्ट्स दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. ओके, है ना. मोस्टली स्टेम्स और रूट्स को क्या करते हैं? स्टोर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, है ना. एंड ऑल्सो वाटर, दे ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. एंड एट दैट टाइम सच टाइप ऑफ पैरेनकाइमा इज कॉल्ड स्टोरेज पैरेनकाइमा. अगर कोई पैरेनकाइमा का टिश्यू फूड को या वाटर को स्टोर करता है अपने अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज पैरेनकाइमा. ओके, अगर कोई पैरेनकाइमा के टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल. If a type of parenchyma tissue consists of green colored pigment called chlorophyll, okay, then they are able to perform the process of photosynthesis. That is, green plants can prepare their own food. And at that time, that parenchyma is called chlorenchyma. What is it called? Chlorenchyma. Understood students? Once again, chlorenchyma किसको बोलते हैं? अगर parenchyma के tissues के अंदर chlorophyll है, okay, chloroplast organelle है और chloroplast के अंदर chlorophyll होता है. Okay, तो उस टाइम पे parenchyma को हम chlorenchyma बोलते हैं. बट देर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके पैरेनकाइमा के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उस टिश्यूज़ में लार्ज एयर का स्पेस होते हैं, लार्ज एयर वैक्यूल्स या कैविटीज़ होते हैं. ओके, और वो एयर कैविटीज़ के कारण दोज प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन द वाटर. ओके, वो वाटर में फ्लोट हो सकते हैं एंड गैसेस कैन बी एक्सचेंज थ्रू द लीव्स. ओके, एट दैट टाइम सच पैरेनकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा. सो एरेनकाइमा क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेनकाइमा. Okay, which is present in the aquatic plants with what? Large air spaces, large air cavities, due to which it can float on the water, and that floating is called buoyancy. What is it called? Buoyancy. ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे अपने 9th स्टैंडर्ड में आगे. Okay, at that time it is called parenchyma. Okay students, so this is the short note of parenchyma. Now comes collenchyma. Okay, now collenchyma का short note में क्या है? Here also the cells are what? Living, elongated, है ना, and irregularly thick at the corners. आप देख सकते हो इसका डायग्राम के कॉर्नर्स में क्या होते हैं? थिक होते हैं, बीच में पतले होते हैं और कॉर्नर्स में थिक होते हैं. मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज और पेक्टिन. ओके, द सेल्स आर मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो है ना, सेल्यूलोज से या पेक्टिन, PECTIN, इट इज़ ऑल्सो केमिकल, उससे सेल वॉल बन सकता है.
दे हैव वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके सेल के बीच में देखो बहुत कम स्पेस दिख रहा है, सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है. देन सेल हैव अ न्यूक्लियस, dense cytoplasm and large vacuoles. Now what is the main function? It provides flexibility and mechanical support to the aerial parts of the plants and allow them to bend. एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मतलब क्या, लीफ के बेस या स्टेम, हमारा जो स्टेम होता है ये सब जो हवा में जो होते हैं है ना, ये क्या करता है मालूम है, उन सारे पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है. सपोज स्टूडेंट्स, अगर कोई प्लांट का स्टेम है ना अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो तेज़ हवा आएगी तो क्या होगा, अगर कड़क स्टेम होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा. लेकिन वही फ्लेक्सिबल स्टेम होता है तो तेज़ हवा जब उस पर लगती है तो बेंड हो जाता है, हवा चले जाए तो आपस से क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेम में, और वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देते हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यू. So mostly they are found in leaf stalks below the epidermis of leaves and stem. Epidermis means layer of the leaves and stem. Then comes the third type of tissue, that is sclerenchyma tissue. Students, हम लोग types of simple permanent tissue कर रहे हैं. पहला कर लिया parenchyma, दूसरा कर लिया collenchyma. Now the third type, जो last type है वो है sclerenchyma. Okay. Now sclerenchyma is made up of what, dead cells. The first two were made up of living cells, but sclerenchyma is made up of dead cells. Long, narrow, thick-walled cells due to deposition of lignin. Okay, it is a long, okay, narrow, thick-walled. इनके cell walls कैसे thick के, and they are made up of what, a chemical called lignin. इनके जो cell wall है वो किससे बने हुए हैं, lignin से बने हुए हैं, which act as cement and hardens them. Okay, ये एकदम सीमेंट जैसा केमिकल होता है, उसके लिए इनके cell wall बहुत कड़क होते हैं. Such cell walls are called lignified cell walls. They are called lignified cell walls. Okay. देर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है क्योंकि वो लिग्निन से एकदम सीमेंट जैसा भर गया है ये. सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये डेड सेल्स है तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्क्लेरेंकाइमा? दे गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. प्लांट्स को कड़क बना देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, एंड मेक्स इट हार्ड एंड टफ टू बियर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. बाहर से कोई भी चोट लगे, कुछ भी लगे, कोई भी स्ट्रेस हो, उसको बियर करने के लिए उसको कड़क बना देते हैं. And they are found in stems around vascular bundles in the veins of the leaves. Okay, ये जो रोप्स होते हैं, मैट्स होते हैं, ये कोकोनट का जो हस्क होता है ना, नारियल छीलते हैं, वो जो छीलते जो होता है ना, उसका नारियल के जो बाल जैसे जो होते हैं है ना, वो सारे वो किससे बने हुए हैं, स्क्लेरेंकाइमा से बने हुए हैं. इतने कड़क होते हैं देखो वो. अंडरस्टूड? तो क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अंदर कोई चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसके लिए बाहर वाली चीज़ क्या होती है, कड़क होती है. सो बाय दिस स्टूडेंट्स वी हैव एंडेड द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. स्टूडेंट्स, वापस से बोलता हूँ मैं कि इस चैप्टर के एंड में आपको रिटन पीडीएफ फाइल मिलेगा, तो आपको नोट्स लर्न उसमें से करने के फॉर लॉन्ग आंसर्स. ओके, शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी एंड आवर फर्स्ट सेशन. स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू. देन वी हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. ओके, देन वी हैव स्टार्टेड विद प्लांट टिश्यूज़, जिसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अंदर हम लोगों ने बाइफर्केशन देखा. फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शॉर्ट नोट देखा, और परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हमने देखे, सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स होता है. देन वी स्टार्टेड विद सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के शॉर्ट नोट्स किए. Okay, tomorrow we will in the next session we will meet and we will discuss the further topics. Okay students, till then go through the video and read the textbook.